حضرت لوط علیہ السلام اللہ کے رسول سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی قوم بتوں کو پوجتی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو بتوں کی پوجا چھوڑنے کی دعوت دی، لیکن آپ علیہ السلام کی لاکھ کوششوں کے باوجود ان کی بیوی سیدہ سارہ علیہ السلام اور بھتیجے سیدنا لوط علیہ السلام کے علاوہ کوئی ایمان نہ لایا۔ ان تینوں نے بائبل سے مصر کی طرف ہجرت کی۔ پھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے سیدنا لوط علیہ السلام کو دین کی تبلیغ کے لیے اردن کے شہر سدوم کی طرف بھیجا۔ سیدنا لوط علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی۔ قرآن مجید میں کئی جگہ پر حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر کیا گیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قوم لوط نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا، جبکہ ان لوگوں کے بھائی لوط نے ان سے کہا، کیا تم لوگ ڈرتے نہیں؟ میں تم سب لوگوں کے لیے ایک امین پیغمبر ہوں، سو تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور میں تم سے اس تبلیغ پر کوئی اجرت کا طلب نہیں کرتا۔ میرا صلہ تو بس رب العالمین کے ہی ذمے ہے۔ سدوم کے لوگ دنیا کے بدترین لوگ تھے، ان کے اخلاق بہت برے تھے، وہ خبیث ترین لوگ تھے۔ ان کی زندگی لوٹ کسوٹ، ڈاکہ زنی اور خیانت پر آلودہ تھی۔ وہ باہر سے آنے والے تاجروں کو عجیب و غریب طریقے سے لوٹ لیتے تھے۔ جب کوئی سوداگر باہر سے آ کر سدوم میں ٹھہرتا تو اس کا مال دیکھنے کے بہانے ہر آدمی تھوڑی تھوڑی چیزیں اٹھا کر چل دیتا۔ تاجر بیچارہ منہ دیکھتا رہ جاتا۔ اگر کبھی کوئی تاجر شکوہ شکایت کرتا، یعنی اپنے مال کے متعلق پوچھتا، بھائی آپ میرا سامان دیکھنے کے لیے لے گئے تھے، تو ان میں سے کوئی ایک واپس آتا اور لوٹا ہوا مال ٹوٹی پھوٹی شکل میں دکھا کر کہتا، بھائی میں تو یہ لے گیا تھا، یہ اپنا سامان واپس لے لے۔ تاجر ٹوٹا پھوٹا مال دیکھ کر غمگین ہو جاتا اور غمزدہ ہو کر کہتا، اب یہ مال میرے کس کام کا، اس خراب مال کا میں کیا کروں گا۔ وہ اسی طرح ایک ایک کر کے واپس آتے اور اسے ٹوٹا ہوا مال دکھا کر واپس کرتے اور یہ بات کرتے، بھائی میں تو ٹوٹا ہوا مال لے گیا تھا، یہ اپنا سامان واپس لے لو۔ اس طرح یہ تاجر زیادہ پریشان ہو جاتا۔ سدوم میں کوئی کتنی ہی بڑی برائی کرتا، نظر کیوں نہ آتا، وہاں کے لوگ اسے اس برائی سے بالکل بھی نہ روکتے۔ اس بات کا اندازہ اس واقعے سے بآسانی لگایا جا سکتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سارہ علیہ السلام نے حضرت لوط علیہ السلام کی خیر و خیریت معلوم کرنے کے لیے ایک شخص کو سدوم بھیجا۔ اس شخص کا نام عزیز العزر تھا۔ عزر جب سدوم کے قریب پہنچا تو ایک سدومی نے اسے اجنبی سمجھ کر لوٹنے کی غرض سے اس کے سر پر زور سے ایک پتھر مارا۔ اس پتھر کے لگنے سے عزر کے سر سے خون بہنے لگا۔ بجائے اس کے کہ وہ پتھر مار کر شرمندہ ہوتا، الٹا اس عزر سے کہا، میرے پتھر کی وجہ سے تیرا سر سرخ ہو گیا ہے، لہذا مجھے اس کا معاوضہ ادا کرو۔ اس نے اسی پر بس نہیں کی، بلکہ عزر کو کھینچ کر عدالت میں لے گیا اور معاوضے کا دعویٰ کر دیا۔ سدوم کے قاضی نے سدومی کا بیان سنا اور فیصلہ دے دیا، سدومی کا بیان درست ہے، عزر سدومی کو پتھر مارنے کا معاوضہ ادا کرے۔ عزر کو یہ فیصلہ سن کر طیش آ گیا۔ اس نے غصے کی حالت میں ایک پتھر قاضی کے سر پر کھینچ کر مارا اور بولا، میرا پتھر مارنے کا معاوضہ تم سدومی کو ادا کر دو۔ یہ کہہ کر عزر عدالت سے چلا گیا۔ ان سب برائیوں سے بڑھ کر ان میں ایک برائی اور تھی، وہ تھی ان کی پرلے درجے کی بے حیائی۔ کائنات میں ایسی بے حیائی اس قوم سے پہلے کسی نے نہیں کی تھی۔ ان کے اخلاق اس حد تک تباہ ہو چکے تھے، وہ بے حیائی کا کام تو کرتے ہی تھے، کرنے کے بعد لوگوں کو بھی بتاتے پھرتے تھے، میں نے فلاں بے حیائی کا کام کیا ہے۔ اس پر بس نہیں کرتے، بلکہ اپنے مجلسوں میں بھی فخر کے ساتھ اس برائی کا تذکرہ کرتے، بے خوف و خطرہ کرتے تھے۔ اس طرح یہ برائی بیان کرنے سے اور زیادہ تیزی سے پھیل گئی۔ اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں حرام کی تھی وہ سب انہوں نے حلال قرار دے دی۔ سدوم کی بستی اردن اور بیت المقدس کے درمیان واقع تھی۔ یہ 5 بڑے شہروں کا مرکز تھا، آج کی زبان میں دارالخلافہ بھی کہہ لیں۔ یہ شہر بہت ہی سرسبز و شاداب تھا، پھلوں کی فراوانی تھی۔ اس کی وجہ سے قریب کے شہر کے لوگ یہاں سے اپنی غذائی ضروریات پوری کر لیتے تھے اور آتے اور اپنی ضرورت کے مطابق پھل لے کر چلے جاتے۔ ایک مرتبہ اردن میں سخت قحط پڑا۔ اہل سدوم کے باغات ان کی بستی سے باہر سڑک کے کنارے کنارے تھے، وہ بہت کثرت سے تھے۔ جب قحط پڑا تو اردن کے لوگوں نے اپنے کھانے کی ضروریات پوری کرنے کے لیے کثرت سے سدوم کا رخ کرنا شروع کیا۔ اردن کے لوگ ان باغات میں آتے اور پھر اپنی ضرورت کے مطابق پھل توڑ کر ساتھ لے جاتے۔ اہل سدوم نے جب لوگوں کو اس طرح پھل توڑتے دیکھا تو پریشان ہو گئے۔ انہوں نے پریشان ہو کر مجلس بلائی تاکہ اس مسئلے کا حل نکالا جائے۔ مجلس کے سربراہ نے اہل مجلس مخاطب کر کے مجلس کے جمع ہونے کا مدعا بیان کیا۔ ہمارے باغات سڑک کے کنارے ہیں، اردن کے لوگ اس میں داخل ہو کر پھل توڑ کر لے جاتے ہیں، اگر لوگ اسی طرح پھل توڑتے رہے تو ہمارے باغات ختم ہو جائیں گے۔ ہمیں اپنے باغات کو بچانے کے لیے کوئی ترکیب کرنی ہوگی۔ آپ سب لوگوں کو یہاں اس لیے جمع کیا گیا ہے تاکہ آپ اس حوالے سے کوئی مناسب مشورہ دیں۔ شیطان بھی وہاں موجود تھا، اس نے ان لوگوں کو مشورہ دیا
जो शख्स भी फल तोड़े इससे जबरदस्ती बेहयाई की जाए। सब ने शैतान के मशवरे को पसंद किया कि जो शख्स भी फल तोड़ेगा इससे जबरदस्ती बेहयाई की जाएगी। इस फैसले के बाद ये लोग शहर के नाकोनों पर बैठे रहते। जो मुसाफिर आता फल तोड़ता तो ये उसे पकड़कर बेहयाई करते और अपनी हवस का निशाना बनाते। शुरू में ये हरकत उन्होंने फल तोड़ने वाले मुसाफिर से की, फिर वो इस अमल के आदी हो गए। फिर इस फेल में इस हद तक बढ़े कि अपनी औरतों से बेताल्लुक हो गए। अल्लाह ताला अपनी मखलूक पर बहुत मेहरबान है। उस वक्त तक किसी कौम पर अज़ाब मुसल्लत नहीं करता जब तक कि अपनी तरफ से कोई रसूल उनकी तरफ ना भेज दे जो उन्हें सीधी रास्ते की तरफ बुलाए और अल्लाह के अजाब से डराए, उनके गुनाहों की खराबियों से उन्हें आगाह करे। अल्लाह ताला फरमाता है, हम उस वक्त तक अजाब नहीं देते जब तक कि हम कोई रसूल ना भेज दें। सैयदना लूत अलैहिस्सलाम की कौम के साथ भी ऐसा ही हुआ। जब उनके गुनाह इंतहा को पहुंच गए, कुफर पूरी शिद्दत इख्तियार कर गया, तो अल्लाह ताला ने उन्हीं में से एक बंदे सैयदना लूत अलैहिस्सलाम को रसूल बनाकर भेज दिया जो नहायत पाक दामन और सच्चे इंसान थे, भले इखलाक के मालिक थे। उन्होंने अपनी कौम को अल्लाह ताला की तरफ बुलाया, एक अल्लाह को माबूद मानने की दावत दी, हराम कामों से बाज आने के लिए कहा, उन्हें डराया अगर तुम बाज ना आए तो अल्लाह का अजाब तुम्हें आ पकड़ेगा। सैयदना लूत अलैहिस्सलाम सुबह शाम उनके पास जाते रहे और अल्लाह के अजाब से उन्हें डराते रहे, लेकिन वो अपने गुनाहों पर डटे रहे। कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाता है, जब उनसे उनके भाई लूत ने कहा तुम क्यों नहीं डरते, मैं तुम्हारी तरफ ईमानतदार रसूल हूँ, अल्लाह से डरो, मेरी पैरवी करो, मैं तुमसे कोई उजरत तलब नहीं करता, मेरी उजरत तो मेरा अल्लाह ही देगा जो तमाम जहानों को पालने वाला है। तुम लोगों ने ऐसी बेहयाई इख्तियार की है जो तुमसे पहले इस जहां में किसी ने नहीं की। तुम मर्दों से बदफेली करते हो, लोगों को रास्तों से रोकते हो और अपनी मजलसों में बुरे काम करते हो। सैयदना लूत अलैहिस्सलाम ने उन्हें उनके बुरे कामों से दिन रात रोका, इन पर मेहनत की। वो लोग सिर्फ इस बेहयाई के काम में ही मुब्तला नहीं थे बल्कि इसके साथ साथ वो मुशरिक भी थे। अपनी तरफ आने वाले रसूलों को जुटलाते थे, लोगों के रास्ते में खड़े हो जाते, उन्हें बगैर किसी वजह के कत्ल कर देते, उनका माल अपने कब्जे में ले लेते थे, फिर एक दूसरे को इन बुरे कामों से रोकते भी नहीं थे। वो लोग सैयदना लूत अलैहिस्सलाम की तमाम बातों को एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देते। सैयदना लूत अलैहिस्सलाम इनको बराबर तबलीग करते रहे। सैयदना लूत अलैहिस्सलाम की मुस्तकिल मजाजी से वो लोग कुछ परेशान हुए। एक दिन की बात है कि वो सब एक जगह जमा हुए। उन्होंने आपस में मशवरा किया कि सैयदना लूत अलैहिस्सलाम हमें हर बुरे काम से रोक रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए। अब चाहिए तो ये था कि वो लोग आपस में मशवरा करते और हजरत लूत अलैहिस्सलाम की बात मानकर गुनाहों को छोड़ देते, लेकिन उसके बिल्कुल बरअक्स उन्होंने मजलिस में फैसला किया कि हजरत लूत अलैहिस्सलाम की किसी बात को नहीं मानेंगे और उन्होंने सैयदना लूत अलैहिस्सलाम की दावत को मानने से इनकार कर दिया, उनका मजाक उड़ाया, उन्हें पागल और दीवाना कहा। सैयदना लूत अलैहिस्सलाम फिर भी उनसे मायूस ना हुए, बराबर उन्हें तबलीग करते रहे, उनकी बातों पर सब्र करते रहे। ये है अल्लाह के नबी की शान, पूरी कौम के मुकाबले में अकेले हैं फिर भी डटे हुए हैं। अल्लाह अकबर। हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने अपनी तबलीग जारी रखी, यहाँ तक कि एक दिन उन्होंने अपनी कौम को डराने और बुरे कामों से रोकने के लिए कहा, क्या इस हक बात को देखने पालने के बावजूद भी तुम बदकारी कर रहे हो? हक बात तो ये है कि तुम लोग बड़ी ही नादानी कर रहे हो। सैयदना लूत अलैहिस्सलाम की कौम ने उनकी कोई बात ना सुनी। शैतान ने उन्हें बिल्कुल अंधा कर दिया था। बेहयाई उनके अंदर रच बस चुकी थी। जो उन्हें बुरे कामों से रोकता वो उसे बुरी नजरों से देखते थे। हजरत लूत अलैहिस्सलाम की रोज रोज की दावत और तबलीग से तंग आकर एक बार उन्होंने मशवरे के लिए मजलिस बुलाई। हम लूत अलैहिस्सलाम की बात नहीं मानते, इसके बावजूद हमें तबलीग करते हैं, आखिर इसका क्या हल निकाला जाए। किसी ने मशवरा दिया, उनको और उन पर ईमान लाने वालों को बस्ती से निकाल दो। सबने इस मशवरे को कबूल किया और फैसला किया कि सैयदना लूत अलैहिस्सलाम को और जो उन पर ईमान लाए उन्हें शहर से निकाल देते हैं। कुरान मजीद में इस बात का जिक्र इस तरह किया गया है, उन लोगों को अपनी बस्ती से निकाल दो जो बड़े पाक साफ बनना चाहते हैं। इधर सैयदना लूत अलैहिस्सलाम ने इनसे फरमाया, मैं तुम्हारे इस बुरे काम से सख्त ना खुश हूँ। ये सुनकर कौम के लोगों ने कहा, अगर तुम सच्चे हो तो हम पर अल्लाह का अजाब ले आओ। अब सैयदना लूत अलैहिस्सलाम को यकीन हो गया कि ये कौम ईमान नहीं लाएगी, उनसे ऐसी उम्मीद रखना बेकार है। चुनाचा उन्होंने अल्लाह के हजूर दुआ की, ऐ मेरे परवरदिगार, इस फसाद मचाने वाली कौम के मुकाबले में मेरी मदद फरमा। अल्लाह ताला ने सैयदना लूत अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल फरमाई, उनकी तरफ अपने फरिश्तों को भेजा। ये वो फरिश्ते थे जो पहले सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास इंसानी शक्ल में गए और वो उनके लिए एक बछड़ा भून कर ले आए थे। फरिश्तों ने उन्हें एक बेटा पैदा होने की खुशखबरी सुनाई थी, यानी सैयदना इसहाक अलैहिस्सलाम की। फिर फरिश्तों ने उन्हें बताया था कि वो कौमे लूत को तबाह करने जा रहे हैं। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरिश्तों से कहा, इसमें तो लूत भी हैं। वो कहने लगे, जो लोग यहाँ रहते हैं हमें सब मालूम है, हम उनको
उनको और उनके घर वालों को बचाएंगे सिवाय उनकी बीवी के कि वो पीछे रहने वालों में होगी। इस किस्से का जिक्र हमने इससे पहले वाली वीडियो में कर चुके हैं, अगर आपने वो नहीं देखी तो वो जाकर जरूर देखें। फरिश्ते इंसानी सूरत में हजरत लूत अलैहिस्सलाम के पास आए तो आप खेतों में काम कर रहे थे। उन्होंने जब इंसानी सूरत में फरिश्ते देखे तो उनको ख्याल हुआ कि कहीं मेरी कौम के लोग इनके साथ बेहयाई ना करें, लिहाजा उनको तनबिया करने के लिए कहने लगे, आप लोग यहाँ अजनबी मालूम होते हैं। उन्होंने आपके यहाँ ठहरने की ख्वाहिश जाहिर की। आपको उनकी ख्वाहिश रद्द करने में शर्म महसूस हुई, इसलिए आप उनके आगे आगे घर की तरफ चल पड़े। सैयदना लूत अलैहिस्सलाम इशारों किनारों में ऐसी बात कहने लगे कि जिनको सुनकर वो उस बस्ती की तरफ चले गए और किसी दूसरी बस्ती में जा ठहरे। आपने उनसे कहा, अल्लाह की कसम मैं नहीं जानता कि रूए जमीन पर इस बस्ती वालों से ज्यादा गए गुजरे और खबीस लोग भी होंगे। ये फरिश्ते आपके साथ आपके घर पहुंच गए। आप मेहमानों के साथ घर में थे कि कौम के लोगों को मेहमानों के बारे में इल्म हो गया। अल्लाह ताला का फरमान है, जब हमारे फरिश्ते लूत अलैहिस्सलाम के पास आए तो उनके आने से गमज़दा और तंग दिल हुए और कहने लगे, आज का दिन बड़ी मुश्किल का दिन है। सैयदना लूत अलैहिस्सलाम जानते थे कि अगर कौम को पता चल गया तो कौम वाले उनके मेहमानों के साथ अच्छा सलूक नहीं करेंगे। कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाता है, और उसकी कौम दौड़ती हुई आई, उनके पास आ पहुंची, वो तो पहले ही से बदकारियों में मुब्तला थी। सैयदना लूत अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ कौम के लोगों, ये है मेरी बेटियां जो तुम्हारे लिए बहुत ही पाकीज़ा हैं। अल्लाह से डरो और मुझे मेरे मेहमानों के बारे में रुसवा ना करो। क्या तुम में एक भी भला आदमी नहीं? कौम के लोगों ने कहा, क्या हमने तुमको सारे जहां की हमायत और तरफदारी से मना नहीं किया? सैयदना लूत अलैहिस्सलाम अच्छी तरह जानते थे कि ये फासिक लोग क्या चाहते हैं। चुनाचा उन्होंने जो जवाब दिया कुरान मजीद में इस तरह आया है, ऐ मेरी कौम, मेरी बेटियां यानी कौम की औरतें तुम्हारे लिए बहुत ही पाकीज़ा हैं। इस जमाने में मुसलमान लड़की का निकाह काफर से जायज था, यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इब्तदाई जमाने तक यही दस्तूर रहा। चुनाचा हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपनी दो बेटियां उतबा बिन अबी लहाब और अबू अल आस बिन रबैया के निकाह में दी थी, हालांकि ये दोनों काफर थे। बाद में मुसलमान औरत का निकाह काफर मर्द से हराम करार दे दिया गया। बहरहाल नबी बाप के बराबर होता है, इस लिहाज से कौम की औरतें उनकी बेटियां थी। उनके कहने का मतलब ये था कि तुम ये बुरा काम क्यों करते हो, औरतों से शादी कर लो। ये तरीका फितरत के ऐन मुताबिक है और सही है, लेकिन वो कौम बदकार थी। बदकारी ने उन्हें अंधा कर दिया था, उनकी अकल मारी गई थी। चुनाचा उन्होंने हजरत लूत अलैहिस्सलाम की ये पेशकश भी मंजूर नहीं की और बोले, तुम्हें मालूम है जो हम चाहते हैं। सैयदना लूत अलैहिस्सलाम अपनी कौम के लोगों को घर में दाखिल होने से रोकने की कोशिश करते रहे। दरवाजा बंद था, वो लोग उसे खोलने और अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे। आप दरवाजे के पीछे से उन्हें नसीहत फरमा रहे थे। जब सूरत हाल नाजुक हो गई तो आपने फरमाया, ऐ काश मुझ में तुम्हारे मुकाबले की ताकत होती, या मैं किसी मजबूत किले में पनाह पकड़ सकता। मतलब ये कि मैं इतना ताकतवर होता या मेरे साथ कोई होता जो मेरे साथ मदद करता, मैं तुम्हें वो सजा देता जिसके तुम हकदार हो। फरिश्तों ने अब तक हजरत लूत अलैहिस्सलाम को अपने फरिश्ते होने के मुतल्लिक नहीं बताया था, लिहाजा जब फरिश्तों ने आपकी बात सुनी और उनके रंजो गम को महसूस किया तो खामोश ना रह सके। फरिश्तों ने हजरत लूत अलैहिस्सलाम को तसल्ली दी, ये आप तक नहीं पहुँच सकते। कुरान करीम ने उन फरिश्तों के अल्फाज यूं नकल किए हैं, ऐ लूत, हम तेरे रब की तरफ से भेजे हुए फरिश्ते हैं, नामुमकिन है कि ये लोग तुझ तक पहुँच जाएं। मुफस्सरीन फरमाते हैं, सैयदना जिब्रील अलैहिस्सलाम बाहर तशरीफ ले गए और अपने पर का एक किनारा उनके चेहरे पर मारा तो वो अंधे हो गए, बल्कि उनकी आंखें बिल्कुल खत्म हो गई, उनकी जगह बाकी ना रही और आंखों का निशान भी खत्म हो गया। जो ही इन्हें ऐसा हुआ वो चिल्लाए, भागो यहाँ से। लूत के मेहमान तो बहुत जादूगर मालूम होते हैं। वो दीवार को टटोलते और अल्लाह के नबी को धमकियां देते हुए लौट गए। जाते हुए वो कह रहे थे, जब सुबह होगी तो तुमसे निपटेंगे। फिर फरिश्तों ने सैयदना लूत अलैहिस्सलाम से कहा, तू अपने घर वालों को लेकर रात के किसी हिस्से में निकल जा और तुम में से कोई शख्स पीछे मुड़कर ना देखे, अलबत्ता तेरी बीवी को वही अजाब पहुंचेगा जो इनके लिए मुकर्रा हो चुका है। मतलब ये था कि आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, परेशान ना हो, हम फरिश्ते हैं, ये लोग आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकते ना हमारा। अल्लाह ताला ने हमें हुक्म दिया है कि आप और आपके घर वाले रात के वक्त इस बस्ती से निकल जाएं। अल्लाह ने इस फाक कौम के लिए हलाकत लिख दी है और जब आप अजाब की आवाज सुने तो आप में से कोई पीछे मुड़कर ना देखे। और ऐ लूत, अल्लाह आपको और आप पर ईमान लाने वालों को बचाएगा, जबकि आपकी बीवी इन सफाक काफरों के साथ हलाक होगी। फरिश्तों ने सैयदना लूत अलैहिस्सलाम को वो वक्त भी बता दिया जो अजाब के लिए मुकर्रा हो चुका था। जैसा कि अल्लाह ताला फरमाता है, उनके अजाब के लिए सुबह का वक्त मुकर्रा हो चुका है, क्या सुबह करीब नहीं? चुनाचा सैयदना लूत अलैहिस्सलाम अपने अहल
जिन्होंने आपकी पैरवी की थी उनको लेकर निकल पड़े। जब आप अपने शहर से कुछ फासले पर गए तो उस वक्त सूरज निकल आया, साथ ही अल्लाह का अजाब उन पर नाजल हो गया। इस अजाब को भला कौन रोक सकता था? उसको रोकना नामुमकिन था। सैयदना जबरील अलैहिस्सलाम ने उनके शहर को उल्ट दिया और वो 7 शहर थे। फिर उनको आसमान की तरफ उठाया गया और उल्ट पुल्ट कर दिया गया। नीचे वाला हिस्सा ऊपर और ऊपर वाला हिस्सा नीचे कर दिया गया। फिर उन पर बड़े बड़े पत्थरों की बारिश बरसाई गई। हर एक पत्थर पर उस आदमी का नाम लिखा था जिस पर उस पत्थर को गिरना था। वहाँ उनमें से कोई अपने शहर में मौजूद था या सफर की वजह से बाहर था, वो पत्थर बारिश की तरह उन पर बरसे, यानी उन पर पत्थरों की बारिश हुई। अल्लाह ताला फरमाता है, जब हमारा हुक्म आ गया हमने ऊपर वाले हिस्से को नीचे कर दिया और उन पर कंकरियां पत्थर बरसाए जो तय बातय थे, तेरे रब की तरफ से निशान ज़दा थे और वो इन जालमों से कुछ भी दूर नहीं थे। तो रात में है कि सदूम पर अमूरा और गंदक की बारिश हुई। कुरान मजीद में है कि पत्थर बरसाए गए। दोनों बयान जमा करने से मालूम हुआ है कि ऐसी हालत पेश आई होगी जैसे आतिश फशा फटने से आती है। आतिश फशा फटने से इर्द गिर्द के इलाके भी नहीं बचते। इसलिए ये ख्याल जहन में आता है कि हजरत लूत अलैहिस्सलाम और उनके मानने वाले भी तो इस अजाब से मुतासर हुए होंगे। इस ख्याल को रद्द करते हुए अल्लाह ताला फरमाते हैं, बस हमने लूत और इसके मानने वालों को बचा लिया, मगर हाँ एक बुढ़िया यानी लूत अलैहिस्सलाम की बीवी वो रह गई। रह जाने वालों में फिर हमने उसे और दूसरे लोगों को हलाक कर डाला और हमने इन पर एक अजीब किस्म का मीना बरसाया यानी पत्थरों का। सो क्या ही बुरा मीना था जो इन लोगों पर बरसाया जिन्हें डराया गया था। सूरज निकलने के बाद हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने एक पहाड़ी पर चढ़कर सदूम की बस्ती की तरफ देखा। वहाँ हर तरफ तबाही और बर्बादी नजर आई। इस तरह वो बदबख्त लोग हलाक हो गए। उन पर दर्दनाक अजाब नाजल हुआ। उनके कुफर और बुरे कामों की वजह से उन्हें इबरतनाक सजा मिली और आखिरत में भी उनका ठिकाना जहन्नम होगा जो बहुत बुरी जगह है। वहाँ से जाने के बाद हजरत लूत अलैहिस्सलाम और उनके घर वालों ने कैसी जिंदगी गुजारी, इस बारे में हमें कुरान और हदीस में कोई वाज़िया बात नहीं मिलती। अल्लाह की हजरत लूत अलैहिस्सलाम पर रहमतें नाज़िल हो।